Hello guys, today I will discuss about of the land transport and railway transport. What is the benefit and the maximum electrified of the 100% target of the achievement of the Indian and the global emission can be the release of the CO2 emissions. That is the some advantage and disadvantages of the your transport sector like your land transport and your railway transport, and the maximum the budget can be the also combined in the your railway budget in the advantage of the road transport is the divided further in the two parts in the cheapest of the railway cost construction maintenance and the door to door service, and this is the upholding the use of the transit for the and the ease of the transport good even the different feasibility and the best for the shortest. This is the advantage of the road transport, and some disadvantages भी होंगे. द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या आ जाएगा, एडवांटेज क्या है, द robust demand. The process of financial year 20, the road, the November 2020, the passenger vehicles rose to the 9% compared to the mostly due to the increasing demand of the festive season. The attractive opponent फिर क्या है, the government in the contain इतने किलोमीटर of the budget, फिर the higher investment of the electric vehicle fund, and then the policy supported 100% for the electrified dimensions and the route and the dimension December January. This is the statement on the railway and transport ministers. The road transport of the India issue क्या है, unsurfaced fast road united during the railway station infilling the fast corridor barrier, the pickup and the toll plaza multiple leasing and the fund of because the given of the road, because this is the your India map. The maximum your this is your golden highway connected to Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai to Kolkata. This is your national highway. Then the travels the golden zone बोलते हैं इसको, गोल्ड नेशनल गोल्डन टिंगर distribution of the road, maximum holding the globally and the India के क्या contribution है over the global. India is the second largest network in the shipping and the इतने लाख किलोमीटर road transport in the 80% passenger train. The category wise of the road and the length of the road and the share of the total land. नेशनल हाईवे फिर आपका नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड, फिर रूरल एंड ये रूरल रोड्स आ जाएंगे, अर्बन रोड, प्रोजेक्ट रोड, फिर नेशनल हाईवे इतने 1 लाख आपको इतना लॉक करता है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट रोड इतने रोड, फिर देन द टोटल नंबर इसका परसेंटेज कितना है, हाईवे का 1% है आपको, सबसे ज़्यादा रूरल का मिलेगा सबसे ज़्यादा, फिर डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा, फिर आपका अर्बन एरियाज एंड द योर प्रोजेक्टेड, देन योर 100%. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना के बाद होगा शायद, नहीं यूएसए के बाद होगा. नेशनल हाईवेज फर्स्ट योर व्हाट इज़ द नेशनल हाईवेज, द कंस्ट्रक्शन इन मॉनिटरी नेशनल सेंटर एंड द अथॉरिटी NHPI आपका कंस्ट्रक्टेड द कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट टू द रेल ट्रांजैक्शन. टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे ऑफ द 2% ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट हाईवे द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक, इसको PWD करता है, इसको SPWD करता है. ये स्टेट का है और ये स्टेट का है, ये सेंटर का है. देन हाईवे टू द इंपोर्ट एंड द टोटल लेंथ ऑफ द 3%. द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या करता है, देन द योर जिला परिषद एंड द पब्लिक डिपार्टमेंट इसको का मेंटेन करता है. देन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट टोटल रूरल एरियाज एंड इतने लाख 10% ऑफ द योर डिस्ट्रिक्ट हो गया. अब देन मूव ऑन द अदर सेक्शन योर विलेज ट्रेवल्स, योर विलेज पंचायत करेगी इसको, द कंस्ट्रक्शन मेन टू द विलेज पंचायत एंड द ग्राम सड़क योजना के तहत इसको द टोटल इतने एंड द टोटल परसेंटेज ऑफ 70%. द ब्रॉडबैंड रोड आर द बॉर्डर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द कवर ऑफ द योर बॉर्डर रोड्स.
एंड द प्लान इन दिस इज द BRO, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक्सप्रेस वे आ जाएंगे आपके। एक्सप्रेस वे आपको 3 पार्ट में डिवाइड है। एक हो जाएगा 4 लेन एक्सप्रेस, एक 2 लेन एक्सप्रेस वे एंड 6 लेन एक्सप्रेस वे। द रोड नेटवर्क स्ट्रेटेजी फॉर द करंटली इतने एक्सप्रेस वे एंड दिस इज द टूल आज द प्रोटेक्शन टोल पार्ट योर एक्सप्रेस वे हो गए। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन, द नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये 6 फेजेस में है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट। फर्स्ट फेजेस नेशनल डेवलपमेंट हाईवे फेज नंबर 1, द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द नेटवर्क। हम अभी बताए थे आपको गोल्डन ट्रायंगल, ये आपका मुंबई, चेन्नई या कोलकाता को कनेक्टेड करता है। देन योर फेज 2 में आ जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ कॉरिडोर आ जाएगा इतने किलोमीटर। नेशनल डेवलप्ड हाईवे नंबर 3, द 4 लेन में ये करेगा कंसिबिलिटी। ये 5th में आ जाएगा सिंगल रोड आप जैसे। फिर आ जाएगा 5 में आ गया सिंगल लेन, इसमें 4th लेन। द 5th में आ जाएगा एक्सप्रेस वे आपका आ जाएगा। 7th में आ जाएगा लिंक रोड बाय द पास अंडर द पासेस, ये कनेक्ट करेगा आपका हाईवे से आपका इसमें। फिर एशियन हाईवेज क्या आ जाएगा, द एशियन हाईवेज में नोन एज द ग्रीट ऑफ द हाईवे द एशियन एंड दिस इज द लैंड ऑक्यूपेशन, द रूट्स ऑफ द पासेस थ्रू द इंडिया। नेशनल हाईवे में ये जापान टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोटर वे। द नेशनल योर आ जाएगा ये पास थ्रू द इंडिया, तो ये आ जाएगा ये द श्रीलंका। ये 40 एंड कोलकाता टू बेंगलुरु। 47 ग्रेट इंडियन नेशनल कवर टू द बंगाल झारखंड एंड नेशनल हाईवे, दिस इज द ग्वालियर टू बेंगलुरु नेशनल हाईवे, दिस इज द स्टार कनेक्टिविटी एंड ये एशिया से है कि। फिर देन यू हैव रियलाइज ये आपका गोल्डन ट्रायंगल हो गया विच स्टेट में कवर कर। फिर आपका नेशनल हाईवे नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पे है ये आपका अटोली टू ढलाई से कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे 2 एंड आगरा टू एंड देन यू हैव रिलाइज नेशनल हाईवे नेशनल, ये आपको याद रखना है। फिर ये 40 फिर श्रीलंका बांग्लादेश योर ऑल वेदर्स रूट्स। देन मूव ऑन द अदर रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट एडवांटेज क्या है इसके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रीफाइड कर दिए हैं। सेफ्टी अदर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन and there is the long term observation, this is the largest and the weather and this is the mass productions of the transport, the sustainable bulk loads and the lesser transport to the international transmission। फिर देन मूव ऑन द रेस्ट। फिर क्या है इसके, वो क्या है रेलवे इंडस्ट्री एडवांटेज इंडिया ग्रोइंग टू द डिमांड एंड द एक्टिविटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी हाइड इंप्रूवमेंट द पॉलिसी सपोर्टेड। फिर आपका बजट में कितना फॉरवर्ड लोन दिस इज द एक्टिविटीज एंड दिस इज द आल्सो हाई द रेलवे मिनिस्टर ऑफ। फिर क्या हो जाएगा ये लिमिटेशन ऑफ द रेल नेटवर्क, लिमिटेशन ऑफ द रेलवेज क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड देन द हाई योर स्नोफॉल एरियाज एंड द डिफरेंट फॉर द रेलवे लाइन ब्रॉड मीटर्स एंड द इंस्टीट्यूट टू डू द डोर टू डोर सर्विस, ये भी डोर टू डोर करती है। एंड देन ये द टाइप्स ऑफ द गेजेस क्या हैं इसके रेलवे के, दो ब्रॉड गेजेस एंड द स्टैंडर्ड गेजेस, मीटर गेजेस, नैरो गेजेस। द यूनेस्को हेरिटेज साइट में दार्जिलिंग माउंटेन का ये आपका सिक्किम में पड़ेगा। देन योर द मेट्रो स्टेशन नीलगिरी टू द निर्मोन करेगी द टोटल कोलकाता गेरवेज। देन द ये आपका द मीटर गारवेज है, ये 100 मिलीमीटर से करेंगे ये। फिर ये है स्टैंडर्ड गेज है आपका। फिर ये ब्रॉड गेज है आपका इतने मीटर 5 to इतने मीटर। ये 3 टाइप्स आपको याद रखना है, मीटर गेज बेज एंड द स्टैंडर्ड एंड द ब्रॉड गेज। फिर द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द रेलवेज गेज, अब क्या अफेक्टिंग करता है फैक्टर the traffic condition because the lot of difficulty in the traffic in this the pass of the railway, then the traffic undergoing and the cost traffic speed of the train and the geographical conditions क्या हैं influence can be the small radiation then is the other sections and move on the other section your distribution of the railway in the world। अब रेलवे में हम साइबेरियन आ जाएगा फर्स्ट योर किसका हो जाएगा सर रसिया का हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रोल द कंस्ट्रक्शन टू द रसिया एशियन इम्पोर्टेंट इतने। फिर द योर कनाडियन रेलवे
कनाडियन आ जाएगा, देन ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल रूट, देन द यूनियन पैसिफिक रेलवे, द ट्रांस स्ट्रिक, द क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द नॉर्दर्न हाईवेज इन द फंक्शन। ये आपका इंटरनेशनल हाईवेज हो गए। किसमें? द स्पेस। देन द प्रॉब्लम ऑफ रेलवेज क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओवर बर्डन ऑफ द रेलवे नेटवर्क एंड द less railway having the further geographical conditions and the shifted of the transport upon the lead development. This is the diesel and approach and the fifth of the traffic fare. This is the so these are the railway and the roadways connected done. That is, thank you for watching this.